Hi, this is Ravinder Singh and welcome back to So Grow Your English Skills. So today we are going to learn Unit First. Unit First we are going to learn. So what we are going to learn? We are going to learn in this unit letter, word, sentence and its kinds. Sentence, kinds. We are going to learn. So first we are going to learn about letter. What does it mean? What does letter mean in English language? Actually, letter, it is a printed sign or symbol that has a sound in a language. If I talk about English language, there are 26 letters in English language. In the English alphabet, these are our A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. ये सब हमारे क्या है? अक्षर है. ये क्या करते हैं? ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. साउंड प्रोड्यूस करते हैं. Here as you can see this symbol, it is producing A sound. This symbol is producing B sound. So letter हमारे क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं. These letters are categorized into two parts. These letters are categorized into two parts. मतलब ये जो letters है इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है. कौन कौन से भाग है हमारे? फर्स्ट, vowels. If I talk about it in English language, there are 5 vowels in English alphabet. What are they? These are our A, E, I, O and U. These 5 letters are called vowels. These 5 letters are called vowels. These are our A, E, I, O and U. इनको हम vowels कहते हैं. जो सेकंड पार्ट है लेटर को डिवाइड किया गया है वो हमारा कॉन्सोनेंट्स है. कॉन्सोनेंट्स. What are consonants? Consonants, any of the letters of the English alphabet except A, E, I, O and U. अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर केवल इन 5 अक्षरों को छोड़ करके, किनको? ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. इन इंग्लिश दिस आर 21. How many consonants are there in English? These are 21. These are our P, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. This all are our consonants. ये क्या है? हमारे consonants है. हम इनके बारे में डीप में आगे पढ़ेंगे कि हम इसका प्रयोग कहाँ किस लिए करते हैं. अगला जो हमारा हुआ है word. What does word mean in English? What does it mean in English? It means a letter or group of letters that has meaning when spoken or written. For example, मतलब हमारा शब्द क्या होता है? शब्द एक अक्षर भी हो सकता है या अक्षरों का समूह होता है जिसका अर्थ होता है. जब वो स्पोकन मतलब बोला जाए या लिखा जाए. For example, उदाहरण के लिए here in this column row you can say I have represented few letters as heading, then word, meaning in English of that word and meaning in Hindi for that word. यहाँ जो हमने लेटर दिखाए आप देख सकते हो, जो अक्षरों को दिखाया हुआ है. Here I have represented 5 letters. These are G, R, E, D. When I have put them together, it became a new thing. And it became as grid. We are reading this word as grid. It means it became a word, which we are reading grid. इन 5 अक्षरों को हमने मिलाया जिससे एक नई चीज की उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ है, जिसे हम ग्रिड नाम से पढ़ रहे हैं. That means in English, a desire for food, a desire for more food, money, power, etc. ग्रीड का क्या होता है? इच्छा रखना और अधिक भोजन के लिए, पैसे के लिए या शक्ति के लिए और अन्य कोई सी भी चीज, वो क्या होता है? हमारा ग्रीड होता है. इन हिंदी लैंग्वेज इट मीन्स लालच, लोभ. We say
इट मीन्स इन हिंदी लैंग्वेज लालच और लोभ। ग्रीड का अर्थ होता है हिंदी भाषा में लालच या लोभ। अगला जो एग्जाम्पल है वो है लेटर्स जो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए HAPPY। When we have put them together, it became as happy. That became a word. When we are reading this as a word, we are reading it as happy. That means in English language, feeling or showing pleasure, pleased. It means in English language, feeling or showing pleasure, pleased. In our mother tongue, in Hindi language, it means khush, person. So we say in Hindi language, happy means. Next, here I have represented also 5 letters L, E, A, R, N. When we have put them together, it became a word as learn. That means in English language to get knowledge, a skill, etc. from somebody, someone. In our language, it means सीखना, जानना, विधा प्राप्त करना. Next example of a word is here are some letters S, I, N, S, T, A, N, T, L, Y. When we have put them together, it became as a word instantly. Instantly. That means in English language without delay, immediately. It means in Hindi तुरंत, शीघ्र ही, तत्काल. Instantly का हिंदी में तुरंत, शीघ्र ही, तत्काल होता है. आपको अब वर्ड भी समझ में आ गया होगा. वर्ड क्या होता है? वर्ड हमारा एक अक्षर ही हो सकता है या अक्षरों का समूह भी होता है जिसका अर्थ हो, कुछ ना कुछ अर्थ हो. जब बोला जाए या लिखा जाए, बोला जाए या लिखा जाए, it should have a meaning in its own particular language. In its own language, there should be some meaning for that word. एग्जाम्पल भी हमने जान लिया, जैसे ग्रीड हैप्पी लर्न, ग्रीड हैप्पी लर्न, इंस्टेंटली. दिस आर आवर वर्ड्स. किससे बने? हमारे लेटर से बने. अगला है हमारा सेंटेंस. सेंटेंस, व्हाट डज इट मीन्स? हाउ कैन वी डिफाइन अ सेंटेंस? A sentence, it is a group of words that are put together to mean something. A complete sentence has at least a subject and a main verb to state, declare a complete thought. For example, मतलब हमारा वाक्य क्या है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं. वाक्य क्या होता है? ये हमारा a group of words, शब्दों का समूह होता है. शब्दों का समूह होता है जिनको एक साथ रखा जाता है, जो अर्थ प्रकट करते हैं. टू मीन समथिंग, अर्थ प्रकट करते हैं, पूरा एक प्रकार से सही अर्थ प्रकट करते हैं. जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसके पास क्या होता है? कम से कम कंप्लीट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब होनी ही चाहिए, जिससे कि विचार पूरी तरीके से प्रकट हो. उदाहरण जानते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, मोहन गोज टू स्कूल, Rohit has a story book, we are learning to speak English. This all are our sentences. ये सभी हमारे क्या है? वाक्य. वाक्य क्या होता है हमारा? A group of word. Here as you can see, how many words are there in this sentence? There are 4 words as Ram is a boy. These are 4 words. How many words are there in this sentence? There are 4 words. To Mohan goes to school. These are our words. तो हमारा सेंटेंस क्या होता है? ये a group of words, शब्दों का समूह होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, जो कंप्लीट सेंस रिप्रेजेंट करे, प्रकट करे, उसको हम वाक्य कहते हैं. और ज्यादातर वाक्य जो भी बनते हैं हमारे, उसके पास सब्जेक्ट और मेन वर्ब होते हैं. Kinds of sentences. Kinds of sentences. How many types of sentences are there in English language? How many types of sentences are there in English? Sentences are of 5 kinds. वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं. वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद हमारे 5 होते हैं. कौन कौन से हैं? पहला हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव. असर्टिव या डिक्लेरेटिव.
हिंदी में कहा जाए इसका अर्थ तो निश्चयात्मक या कथात्मक। निश्चयात्मक या कथात्मक वाक्य क्या होते हैं? द सेंटेंस विच declares or asserts a statement, feeling, opinion, incident, event, history, or anything is called an assertive sentence. मतलब वाक्य जो क्या करते हैं, असर्ट्स करते हैं। असर्ट मतलब दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, दृढ़ता पूर्वक कहते हैं। टू से फर्मली एंड क्लियरली, क्या चीज कहते हैं? स्टेटमेंट को कहते हैं, फीलिंग को कहते हैं, ओपिनियन को कहते हैं, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री या कुछ भी, उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। एंड असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड, मतलब जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो अपने अंत में क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग करता है। किसका? फुल स्टॉप का। जो ये छोटी सी डॉट होती है हम इसको फुल स्टॉप कहते हैं। कभी भी आप कोई वाक्य अंत होगा असर्टिव, डिक्लेरेटिव या इंपेरेटिव, उसके एंड में आप फुल स्टॉप भी पाओगे, जो इस प्रकार की बिंदी होती है। विद अ पीरियड यू कैन से। Assertive sentences can be either affirmative or negative. Our assertive sentences, it can be either affirmative or negative. ये हमारे जो assertive sentences होते हैं वो हमारे या तो सकारात्मक भी हो सकते हैं या नकारात्मक, affirmative भी या negative भी। Affirmative, what does it mean? It means to be replied, to be said yes, and negative it means to be replied, to be said नो नॉट। इसके एग्जांपल जानते हैं हम। एग्जांपल्स अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल इस कॉलम में मैंने दिखाए हैं और नेगेटिव इस कॉलम में। एज यू कैन सी, माय नेम इज रवि, मेरा नाम रवि है। अजय लिव्स इन दिल्ली, ही स्टडीज इन 12th स्टैंडर्ड, आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ये हमारे क्या असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जांपल है। हमारे नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल क्या है? एज यू कैन सी, Sita does not live in Delhi. I have no leisure. She has never visited him. They did not tell me. ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? हमारे नेगेटिव सेंटेंस के। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारे नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण है। नेगेटिव सेंटेंस में आप ज्यादातर इन शब्दों का प्रयोग पाओगे। नो, नॉट, नेवर, नन, नाइदर। इस प्रकार के प्रयोग क्या है? नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं। नथिंग। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में दो आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिनका काम क्या है? असर्ट करना स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री, कुछ भी, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। दो प्रकार के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये था हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस इज आवर इंट्रोगेटिव। दूसरा जो प्रकार है वाक्यों का वो क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव है। What is an interrogative sentence? What does it mean? An interrogative sentence is a sentence which asks direct questions. What does it do? It asks direct question. It starts capital letter. It starts with capital letter and ends in a question mark. मतलब जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य हमारे वह वाक्य होते हैं जो सीधे तौर पर किसी से पर्सन पूछते हैं। डायरेक्ट, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जो है किसी पर्सन पूछते हैं। इनकी जो शुरुआत होती है इस वाक्य की वो कैपिटल लेटर से होती है, लेकिन जब हम कभी भी इस वाक्य को कंप्लीट करते हैं तो उसके एंड में हम क्या करते हैं? वी कीप अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ दैट सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क जो इस प्रकार से होता है, तो क्वेश्चन मार्क से आप पता कर सकते हो, जान सकते हो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव, इसमें पर्सन पूछे जाते हैं। कैपिटल लेटर, एक्चुअली किसी भी सेंटेंस का, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव हो, उनका जो है पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। There are 4 types of interrogative sentences. How many types of interrogative sentences are there? There are 4 types of interrogative sentences. कितने प्रकार के हमारे इंट्रोगेटिव वाक्य? ये 4 प्रकार के हमारे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? वो हमारे पहला हमारा है, ये हमारा फर्स्ट WH interrogatives. WH interrogatives. What are WH interrogatives?
WH interrogatives are questions that begin with question words. A question word or interrogative word is a function word whose function is to ask a question. जो हमारे WH interrogative होते हैं वो क्या है? WH interrogative वो एक पर्सन है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. कैसे? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा? अ क्वेश्चन वर्ड वी कैन से इंटरोगेटिव वर्ड वो होते हैं जिनका कार्य क्या है? पर्सन पूछने का है. एक फंक्शन वर्ड होता है जिसका कार्य क्या है? पर्सन पूछने का है. तो पर्सन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. देयर आर 9 क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेजी भाषा में 9 क्वेश्चन वर्ड है. 9 क्वेश्चन वर्ड है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड WH वर्ड्स बिकॉज excluding how all the other question words start with WH. इनको WH वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि how को हटा करके बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स है वो किससे शुरू होते हैं? WH से. मतलब उनके शुरू में WH लिखा जाता है फिर बाद में कुछ भी हो हम जानते हैं आगे AT WH AT जैसे कि व्हाट में दे रखा है एग्जांपल. फॉर एग्जांपल what is your name, where do you live, which color do you like most, why do you not talk to her. ये हमारे क्या है? WH इंट्रोगेटिव से. इसमें हमने किसका प्रयोग कर रखा है? क्वेश्चन वर्ड का जो हमारे ऐसे हैं WH से चालू भी हो रहे हैं. बट ये हमारा किससे चालू हो रहा है? WH से. वेयर ये भी हमारा WH से चालू हो रहा है इसलिए हम इसको WH वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं. हाउ ये हमारा WH इंट्रोगेटिव में आता है. याद रखना बेशक ये WH से चालू नहीं होता है लेकिन यहाँ आता है हमारा WH इंट्रोगेटिव्स में. ये बाकी जो 8 है हमारे फर्स्ट हमारा वर्ड व्हाट, सेकंड हमारा वेयर, थर्ड हमारा विच, फोर्थ हमारा व्हाई, फिफ्थ जो हमारा है वो हु है, सिक्स्थ हमारा whom है, सेवंथ हमारा whose है. सारे जो है हमारे WH इंट्रोगेटिव से चालू हो रहा है. लास्ट हमारा जो 8वां है वो हमारा वैन है. बस हाउ को हटा करके सभी जो है हमारे WH इंट्रोगेटिव WH जो है इससे चालू होते हैं. इनके शुरू में WH लिखा जाता है. तो ये हमारे WH इंट्रोगेटिव्स हैं. जो इसका दूसरा काइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूप है वो हमारा yes no interrogatives है. yes no interrogatives ये क्या होते हैं? These questions are designed to be answered with an affirmative or a negative. They start with a verb or helping verb followed by the subject. मतलब ये पर्सन जो है इसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है? इन पर्सनों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जब भी उनका उत्तर दिया जाए तो या तो वो अफर्मेटिव में दिया जाएगा या नेगेटिव में पहले. फिर उसके बाद जो है इसकी खासियत क्या है? ये या तो वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जिसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. अफर्मेटिव नेगेटिव में इसका अर्थ यह है कि अफर्मेटिव का अर्थ कि जब भी इस प्रकार के वाक्य पर्सन पूछते हैं तो हम उत्तर में या तो यस के रूप में उत्तर देंगे या नेगेटिव इट मींस नो के रूप में उत्तर देंगे. यस के रूप में या नो के रूप में. फिर उसके बाद हम जो है पूरा वाक्य कहेंगे, उसका जवाब देंगे. उदाहरण जान लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इज योर नेम मुकेश, डू यू लिव इन दिल्ली, आर यू 18 years old, डू आई टीच इंग्लिश. ये हमारे क्या है? यस नो इंट्रोगेटिव्स हैं. अगर आप इसका उत्तर दोगे तो किसमें दोगे? पहले हाँ या ना में, यस और नो में. जैसे कि यदि मैं हिंदी में आपसे पूछूं कि आपका नाम मुकेश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, यदि आपका नाम मुकेश है तो आप कहोगे यस, हाँ, फिर कहोगे पूरा सेंटेंस माय नेम इज मुकेश. और अगर आपका नाम मुकेश नहीं है तो आप कहोगे नो, फिर कहोगे पूरा सेंटेंस नो माय नेम इज नॉट मुकेश. तो ये है हमारे यस नो इंट्रोगेटिव्स जिसमें हम उत्तर पहले हाँ और ना में देते हैं, उसके बाद हम पूरा वाक्य कहते हैं. डू यू लिव इन दिल्ली? इफ यू लिव इन दिल्ली यू विल से यस आई लिव इन दिल्ली.
If you do not live in Delhi, then you will say, no, I do not live in Delhi. I do not live in Delhi. Are you 18 years old? If you are 18 years old, then you will say that, yes, I am 18 years old. If you are not 18 years old, then you will say that, no, I am not 18 years old. I think you have understood. इसमें हम जवाब yes और no में देते हैं. Do I teach English? Yes, I teach English. हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. ये है हमारा इंट्रोगेटिव का दूसरा काइंड, जो है हमारा yes no इंट्रोगेटिव्स. जो इसका तीसरा काइंड है वो हमारा है अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स. अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स. डिजिटल पेन का इस्तेमाल करना ज्यादा नहीं जानता हूँ, सॉरी फॉर दैट. अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स हमारा क्या है? अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स आर क्वेश्चंस दैट गिव द लिसनर अ चॉइस ऑफ 2 और मोर आंसर्स इन द क्वेश्चन. मतलब अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो जिससे पूछा जाता है, पर्सन उसको चॉइस देते हैं, या तो 2 या उससे अधिक चीजों की चॉइस दी जाएगी पर्सन में ही जवाब देने के लिए. पर्सन में ही जो है जवाब देने के लिए, आंसर्स इन द क्वेश्चंस. लिसनर को, जिससे पर्सन पूछा जाता है, सुनने वाले से, पूछने वाला जिससे पर्सन पूछा जाता है, वही मान लो. दिस आर आल्सो चॉइस क्वेश्चंस. मतलब इनको चॉइस क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है. ये हमारे इसके एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक कुकीज और अ बनाना फॉर डेजर्ट. यहाँ पर चॉइस है कुकीज और बनाना में, कि मिठाई के रूप में, क्या मिठाई के रूप में आप कुकीज से बनाना लेना पसंद करोगे? आपसे पर्सन पूछा गया है कि 2 में से एक चॉइस जो आपको चुननी है. इसी मैड और जस्ट टायर्ड. हियर इज आल्सो अ चॉइस. इसी मैड और जस्ट टायर्ड. मैड एंड जस्ट टायर्ड, बिटवीन दिस 2 words there are choices. There is a choice between these 2 words, mad or just tired. There is a choice. You have to choose one. Do you think I should go home or stay a little longer? Here is also representing some choice, a choice for a listener. आपको क्या लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए या थोड़ा ठहरना चाहिए? चॉइस यहाँ पर किसके बीच में? गो होम, लिटिल लॉन्गर. इनके बीच में क्या है? चॉइस है, स्टे लिटिल लॉन्गर. जो हमारा नेक्स्ट अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स है वो है हमारा, इसका एग्जांपल, डज शी वर्क इन द सिटी और इन द सबर्ब्स. इस पर्सन में उत्तर देने के लिए जो है दिखाया गया है, क्या वह शहर में काम करती है या उपनगर में, मतलब शहर के बाहर जाकर के, थोड़ा शहर के जो आउटलाइन एरिया में, क्या वो शहर में काम करती है या सबर्ब्स में. यदि आप जानते हो तो आप कहोगे वो शहर में काम करती है. यदि आप ये जानते हो कि वो सबर्ब्स में काम करती है तो आप कहोगे शी वर्क्स इन सबर्ब्स. तो यहाँ पर चॉइस होती है. अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव जो होते हैं उसमें हमारी चॉइस होती है, 2 या उससे अधिक चॉइस दी जाती है पर्सन में ही जवाब देने के लिए. नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोगेटिव का जो काइंड है, जो 4th काइंड है हमारा, वो है हमारा टैग क्वेश्चंस. टैग क्वेश्चंस, व्हाट आर दे? टैग क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस फॉर्म्ड बाय attaching question tags onto the end of the declarative sentences or assertive sentences, you can say statements. When the statement is positive, the tag will be negative and vice versa. जो हमारे टैग क्वेश्चंस होते हैं, टैग क्वेश्चंस उस प्रकार के पर्सन होते हैं जिनका प्रयोग क्वेश्चन टैग को जोड़ करके किया जाता है, लगा करके किया जाता है. जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या स्टेटमेंट हो, उसके अंत में, जो भी सेंटेंस हो उसके अंत में जो है क्वेश्चन टैग का प्रयोग करके जो है प्रयोग किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा. यदि वो अफर्मेटिव में सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैनर में होगा. और अगर हमारा नेगेटिव में तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा? ओनली इंट्रोगेटिव मैनर में होगा, इंट्रोगेटिव मैनर में.
जानते हैं इसके एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग इजंट इट, हियर एज यू कैन सी इट इज रेनिंग। ये क्या है हमारा, कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव में, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन टैग प्रयोग किया है, इजंट इट, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव में, इसलिए हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैनर में जो है क्वेश्चन टैग प्रयोग किया है। सी कैन स्विम वेल, कांट सी, इस एग्जाम्पल से भी आप जान सकते हो। सी कैन स्विम वेल, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है वो किसका क्या है, कांट सी, कांट सी। यू आर नॉट बिजी, आर यू, यू आर नॉट बिजी, ये कौन सा वाक्य हमारा, नेगेटिव, लेकिन हमने जो क्वेश्चन टैग प्रयोग किया है यहाँ पर वो इंट्रोगेटिव मैनर में किया है। किस मैनर में, इंट्रोगेटिव मैनर में, आर यू। ही कैन नॉट कम, ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जो हमने क्वेश्चन टैग प्रयोग किया है वो हमने इंट्रोगेटिव मैनर में किया है, कैन ही। ये केवल इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं कि आपको इस पूरी सीरीज में क्या पढ़ाई जाएगी उसका परिचय है पूरा। हम डीप में इसके बारे में आगे जो है आने वाली वीडियो में जानेंगे, यूनिट्स में जानेंगे। ये हमारे 4 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो हमारे WH इंट्रोगेटिव्स, यस नो इंट्रोगेटिव्स, अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स और लास्ट जो है हमारा टैग क्वेश्चंस। ये हमारे 4 प्रकार के इंट्रोगेटिव्स हैं। 4 प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाया जाता है। जो हमारा तीसरा काइंड है सेंटेंस का, जैसे कि आपको बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो उसका जो तीसरा काइंड है हमारा वो ये है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में आज्ञा, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इसको हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो हमारे आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच इज used to convey a command or a request, the sentence which is used to convey a command, a request or a forbiddance is called an imperative sentence। मतलब वाक्य, वे वाक्य जिसका प्रयोग कन्वे अ कमांड, कन्वे कमांड करने के लिए किया जाता है। कन्वे का मतलब क्या होता है, पहुंचाना, टू टेक, टू टेक, कन्वे का अर्थ क्या होता है, पहुंचाना। इंग्लिश में कहा जाए तो इसका अर्थ होता है टू टेक समथिंग टू समवन, एज इट कैन बी एन आइडिया, अ थॉट। तो ये क्या करता है, कन्वे करता है कमांड को, रिक्वेस्ट को और फॉरबिडेंस। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा में कहा जाए तो मनाही, किसी को इनकार करना, किसी चीज से मनाही, किसी को ना करने के लिए रोकना। फॉरबिडेंस, द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरबिड। ये हमारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स द सेकंड पर्सन you for the subject, but most of the time the subject remains hidden। मतलब जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इस वाक्य को बनाते हैं, तो उसमें जो है ना ज्यादातर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो यू के रूप में होता है। किसके रूप में, यू के रूप में। लेकिन अधिकतर समय जो है हमारा सब्जेक्ट जो है प्रयोग नहीं रहता है, छिपा रहता है। हमेशा जो सब्जेक्ट इसमें यू ही मिलेगा आपको। Let's know some of its example. For example, bring me a glass of water. Don't throw the garbage in open. Drive slowly. Don't stay out at night. ये सब हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। Bring me a glass of water. कृपया करके मेरे लिए गिलास पानी ले आओ। Don't throw the garbage in open. खुले में कचरा ना फेंको, ना डालो। यहाँ पे एक प्रकार से फॉरबिडेंस है, रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, फॉरबिडेंस है। ये एक प्रकार से कमांड है, रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हो। ड्राइव स्लोली, कृपया गाड़ी धीमे चलाए। डोंट स्टे आउट एट नाइट, ये प्रकार का फॉरबिडेंस है, मनाही है कि रात को बाहर ना ठहरो। और जो हमारा चौथा जो है सेंटेंस का काइंड है वो हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, actually it conveys a strong emotions and ends with an exclamation mark।
मतलब जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी की गहरी भावना को व्यक्त करते हैं, कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, दिखाते हैं। और इस वाक्य के अंत में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमारे इस प्रकार से होता है, यहाँ आप इस ब्रैकेट में भी देख सकते हो, इस ब्रैकेट में ये exclamation mark. In other words, an exclamatory sentence makes a statement just like a declarative sentence, but it also conveys excitement or emotion. अन्य शब्द में कहा जाए, जो हमारा exclamatory sentence होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट ही दर्शाते हैं, दिखाते हैं, किसकी तरह, जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, उसकी तरह। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जो है ना उसकी भावना को, उत्तेजना को व्यक्त करते हैं, एक्साइटमेंट, उत्तेजना। इसके उदाहरण जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हैप्पी बर्थडे मोहित, व्हाट अ लवली बकेट ऑफ आवर्स, हाउ फास्ट यू रेन, व्हाट अ वंडरफुल डे। ये क्या है, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के उदाहरण है। और ज्यादातर जो है हमेशा ये जो है अपने एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लाते हैं। देख सकते हो पहले वाक्य में हैप्पी बर्थडे मोहित में यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, दूसरे वाले में फ्लावर्स के बाद है, ये रेन के बाद है, डे के बाद ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जो आखिरी वाक्य का प्रकार होता है, द 5 काइंड ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये हमारे the sentence which expresses a prayer, conveys, curse, etc. is called an optative sentence. This kind of sentence generally starts with may and wish. मतलब वो वाक्य जो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं किसी की प्रार्थना, दुआ को, किसी की गहरी अभिलाषा, इच्छा को, या किसी के गहरे अभिशाप को, वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य आमतौर पर किससे चालू होते हैं, में और विश, इन 2 शब्दों से चालू होते हैं आमतौर पर। ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं चालू हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में और विश से ही शुरू होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हमारे, फॉर एग्जाम्पल, मे योर टीम विन द मैच, मे योर टीम विन द मैच, आपकी टीम मैच को जीते। एक प्रकार से क्या है, किसी की प्रार्थना है, इच्छा है। विश यू आर वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, मतलब आपका जो है विवाह कामयाब रहे। मे ही अचीव सक्सेस, मे गॉड हेल्प यू, ये हमारे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, किसी न किसी प्रकार की एक प्रकार से प्रार्थना है, किन्विश है, कर्ज भी होता है कि ईश्वर करे कि पूरी जिंदगी तू कामयाबी ना प्राप्त करे, ये एक प्रकार से कर्ज है। ये हमारे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आज हमने जाना है, क्या क्या जाना, यूनिट फर्स्ट में हमने लेटर के बारे में जाना, फिर लेटर्स के पार्ट्स के बारे में जाना, जिसमें हमने वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स के बारे में जाना। फिर हमने वर्ड के बारे में जाना कि वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है, किससे बने हैं। फिर हमने आज की इस यूनिट में सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में जाना, सेंटेंस भेद, काइंड्स, जिसमें हमने असर्टिव के भी 2 रूप जाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इसके अलावा हमने दूसरा जो वाक्य का रूप जाना वो था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के भी हमने 4 रूपों को जाना, जो था हमारा WH इंट्रोगेटिव्स, यस नो इंट्रोगेटिव्स, अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स, टैग, क्वेश्चन। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 4 प्रकार हैं। फिर उसके बाद हमने जो वाक्य का तीसरा प्रकार जाना वो इंपेरेटिव सेंटेंस जाना, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जाना। और जो चौथा हमने वाक्य का प्रकार जाना वो था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो 5वां जो है हमारा आखिरी वाक्य का प्रकार वो था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। इन सब के बारे में हम आने वाली इस यूनिट की सीरीज जो है जानेंगे कि कैसे इन सब के द्वारा वाक्य बनाए जाते हैं। तो हैव अ गुड डे, हैव अ गुड जर्नी फॉर दिस सीरीज।